गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 7.5 चल रहा है। मेथड भी बहुत अच्छी है। उसमें 3 मेथड है। तीनों मेथड बहुत ही इजी है, काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज वर्कशीट रखने वाला हूं। ओके, तो आज क्या काम करेंगे, जो बाकी इलस्ट्रेशन है वो और 7.5 का एक सम, मतलब आज के लेक्चर में सिर्फ 3 सम करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 बाकी, 15 बाकी है, 14 और 7.5 का 18 नंबर का सम बाकी है। ओके, तीनों सम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तीनों सम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैं पहले ही लिख लेता हूं IMP। ओके, काफी अच्छा सम है 15 और इलस्ट्रेशन 14। कैसे काम करेंगे देखते हैं। देखो यहां पे हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ब्रैकेट 3 sin phi minus 2 into cos phi in denominator 5 minus cos square phi minus 4 sin phi d phi। तो क्या करेंगे यहां पे, देखो यहां पे सभी जगह पे साइन है, 2 जगह पे cos है। तो अगर आप सोचोगे कि sin phi को हम एज्यूम कर लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी यहां पे है, तो cos phi d phi। लेकिन ये जो डिनोमिनेटर में cos square phi है उसका क्या, तो पहले डिनोमिनेटर में जो cos square phi है उसको हम कन्वर्ट करेंगे sin square। तो cos square phi को हम कैसे लिखेंगे, तो 1 माइनस sin square phi। लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, -1, तो 1 माइनस sin square phi के आगे नेगेटिव साइन आने वाली है। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो I इक्वल टू इंटीग्रेशन और फर्स्ट ब्रैकेट 3 sin phi minus 2 into cos phi d phi in denominator 5 as it is। Now I put cos square phi is equal to 1 minus sin square phi, but our coefficient is -1. Then we write -1 minus minus plus sin square phi, और यहाँ पे -4 sin phi है, वो वैसा का वैसा ही। तो न्यूमेरेटर हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा, 3 sin phi minus 2 into cos phi d phi। See in denominator first I write sin square phi minus 4 sin phi and 5 minus 1 which is constant term, that is 4। Now I see sin phi is equal to some new variable, say x। Okay, now I assume sin phi equal to x। Suppose sin phi is equal to x। Now derivative of sin phi, that is cos phi, means I write here cos phi d phi is equal to dx। देखो अब कैसे काम करेंगे, तो I इक्वल टू यहाँ पे जहां भी sin phi है वहां पे मैं रख दूंगा x, और cos phi d phi की जगह पे हो जाएगा dx। तो न्यूमेरेटर में होगा 3x minus 2 and in denominator x square minus 2x, sorry 4x plus 4 dx। तो डिनोमिनेटर में देखो x square minus 4x plus 4 है, तो इसको लिखेंगे x minus 2 whole square and integration in numerator 3x minus 2 in denominator x minus 2 whole square dx। अब AB वाली मेथड हो गई हमारी, x minus 2 whole square है डिनोमिनेटर में, तो इसको लिखेंगे a upon x minus 2 b upon x minus 2 whole square। देखो यहाँ पे now 3x minus 2 upon x minus 2 whole square is equal to, I write a upon x minus 2 plus b upon x minus 2 whole square। अब क्या करने वाले हैं, शायद आपको पता चल गया होगा कि अब हम एलसीएम लेने वाले हैं। तो I इक्वल टू और 3x minus 2 is equal to a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, a के डिनोमिनेटर में x minus 2
तो 1 टाइम x माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होने वाला है, तो a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सिंपल b इंटू 1। ओके, नाउ a है उसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल ax माइनस 2a प्लस b से दिस इज रिजल्ट नंबर 1। नाउ फर्स्ट वी फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, then we take LCM equal to 0. But here LCM is x minus 2 whole square. Now we take x minus 2 whole square equal to 0. That means x minus 2 equal to 0. And then we get x equal to 2. Now we put x equal to 2 in result 1. See here. X equal to 2. Then 1 implies. Put here x equal to 2. 3 2s are 6 minus 2. That is 4. And for this side put x equal to 2, then first term is 0 and second term b as it is, then we get value of b which is 4. Okay, now from this result compare coefficient of x. This side coefficient of x is 3 and this side only a, then we get value of a is 3. Here a is equal to 3, then here we get value of a and b both. Okay, now we put value of a and b here, then we write 3x I equal to integration 3x minus 2 upon x minus 2 whole square की जगह पे मैं लिखने वाला हूं 3 upon x minus 2 plus b, that means 4 upon x minus 2 whole square भी है, तो अलग अलग कर देता हूं, 3 आ जाएगा बाहर, dx upon x minus 2 plus 4 which is constant, then outside. Now I take x minus 2 whole square in numerator, then x minus 2 whole raised to minus 2 dx. Now simple integration of first term, that is log modulus of x minus 2 plus 4 as it is. Now integration of x raised to n, that is x raised to n plus 1 upon n plus 1. Then I write here x minus 2 whole raised to minus 1 upon minus 1 plus. Now see here I equal to 3 into log modulus x minus 2 minus, take here x minus 2 whole raised to minus 1. Then this term take in denominator. Then 4 divided by x minus 2 plus. Now last I put value of x, but x is sin phi here. Then our final answer 3 into log modulus of sin phi minus 2 minus 4 divided by sin phi minus 2 plus. Okay, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन निकालना है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4 अपन 2 माइनस साइन फाइव, बात तो एक ही है। अब अगला इलस्ट्रेशन मतलब 7.5 के आगे का लास्ट इलस्ट्रेशन, और वो है 14 नंबर हमारा, बहुत ही इजी है लेकिन बहुत बढ़िया है। देखो उसमें कैसे काम करेंगे, देखते हैं 14 नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 14। हमारा क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन इन न्यूमरेटर ओनली एक्स स्क्वायर, इन डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ओके, तो अब यहां पे क्या करने वाले, यहां पे शायद आपको देख के ऐसा लगे कि यहां पे तो एक्स स्क्वायर को एज्यूम कर लो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी हम अगर एज्यूम करते हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या है 2x dx। तो यहां पे तो न्यूमरेटर में x स्क्वायर है, x की टर्म तो कहीं भी नहीं है, तो आप बोलोगे सर x स्क्वायर है तो उसको x into x लिखो। ओके, तो x dx तो हमको dt मिल गया, लेकिन जो अभी न्यूमरेटर में एक x बाकी है तो उसकी जगह पे तो रूट t आ जाएगा, लेकिन वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या करने वाले, देखो ये सम भी बहुत अच्छा है, इसको भी मैं बोलता हूँ IMP। ओके, टुडे इज IMP डे। नाउ सी हियर, नाउ x equal x square upon
एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहां पे हमको एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, उसमें हम एक्स स्क्वायर की जगह पे कुछ ना कुछ एज्यूम करेंगे। क्या? तो टी एज्यूम करेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं नाउ इन दिस टर्म पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देन व्हाट वी गेट? then we get x square, that means t in denominator t plus 1 t plus 4। ओके, तो यहां पे देखो मैंने सिर्फ x स्क्वायर की जगह पे मैंने t लिखा है, dx में कोई चीज नहीं लाया हूं, dx वैसा का वैसा ही है, मतलब dt में कन्वर्ट नहीं किया है, सिर्फ x स्क्वायर की जगह पे मैंने t लिखा है। अब कैसे काम करेंगे देखो यहां पे, अब ये जो फंक्शन है तो उसको मैं ए बी वाली मेथड से सॉल्व करता हूं। तो t अपन t प्लस 1 इंटू टी प्लस 4 इज इक्वल टू a अपन t प्लस 1 प्लस b अपन t प्लस 4। नाउ आई टेक एलसीएम, देन दिस साइड वी गेट t and a multiply with t plus 4, b multiply with t plus 1, say this is result number 1। Now, same method, we find first possible value of t, then we take LCM is equal to 0, but here LCM is t plus 1 into t plus 4, then we take t plus 1 equal to 0, t plus 4 equal to 0, from first bracket we get t equal to minus 1, from second bracket we get t equal to minus 4, then here we get possible value of t are minus 1 and minus 4. Put these two value in result one first, I take t equal to minus 1. Now see here, t equal to minus 1, then result 1 implies, see here, t equal to minus 1. Put in second term t equal to minus 1, then our second term is 0. Put here t equal to minus 1, then 4 minus 1, that is 3a. Then we get value of a is equal to minus 1 by 3. Okay, now I put t equal to minus 4, t is equal to minus 4, then result 1 implies, put here t equal to minus 4. Put in first term, then first term is 0. Put here minus 4 plus 1, we get minus 3. From both side minus cancel, then we get b equal to 4 by 3। तो यहाँ पे a और b दोनों की वैल्यू हमको मिल गई। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं t अपन t प्लस 1 t प्लस 4 इज इक्वल टू a अपन a, दैट इज माइनस 1 by 3 अपन t प्लस 1 प्लस b 4 by 3 डिवाइड बाई t प्लस 4। अब यहां से और यहां मैं क्या लिखने वाला हूं, तो यहां पे मैं t की जगह पे x स्क्वायर लिखने वाला हूं, पुट t इज इक्वल टू x स्क्वायर, देन वी गेट इन न्यूमरेटर x स्क्वायर, इन डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 1 इनटू सेकंड ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू minus 1 by 3 as it is in denominator t, then now x square plus 1 plus 4 by 3 in denominator x square plus 4। मतलब इसका इंटीग्रेशन माने इसका इंटीग्रेशन दोनों टर्म सेम ही है। तो देखो अब क्या करने वाला हूं, अब बहुत ही कम बाकी है। देखो नाउ i इक्वल टू इन न्यूमरेटर x square in denominator x square plus 1 into x square plus 4 dx, then I write I equal to in numerator a upon, that means minus 1 by 3 upon x square plus 1, b upon b, that is 4 by 3 upon x square plus 4 dx। तो अब दोनों टर्म को मैं अलग अलग काम करूंगा, दोनों टर्म पे अलग अलग काम करने वाला हूं। देखो यहां पे, तो यहां पे जो कांस्टेंट है माइनस 1 by 3, उसको मैं बाहर ले लेता हूं, तो माइनस 1 by 3 dx अपन x स्क्वायर 1, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 4 by 3 आउटसाइड इंटीग्रेशन dx अपन x स्क्वायर प्लस 4, दैट मींस 2 स्क्वायर। नाउ सी हियर
फर्स्ट टर्म -1/3 एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ x square plus a square which is 1 upon a, that is 1 upon 1 tan inverse x upon a plus 4/3 1 upon a, that is 1/2 tan inverse x by 2 plus c. Now last step, that is -1/3 tan inverse x plus 2 to the 4, then we get 2/3 tan inverse x by 2 plus c, which is our final answer. तो ये दोनों सम बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं. आपको लग रहा होगा कि इसमें तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो एक काम करो, ये दोनों सम 2 बार लिख के मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ठीक है. अभी एक सम बाकी है. चलो बच्चों, अगला सम स्टार्ट करते हैं. बहुत ही बढ़िया सम, अभी तक का बहुत अच्छा सम. अब तक जितने भी सम किए हैं इंटीग्रल में, उसमें से सबसे ज्यादा अच्छा सम यही है 7.5 का 80 नंबर का. तो यहाँ पे 7.5 18 नंबर. हमारा क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन इन न्यूमेरेटर x square plus 1 into x square plus 2 in denominator x square plus 3 into x square plus 4 dx. बहुत ही बढ़िया सम है, एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है. तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं मोस्ट IMP रेस्ट इंफिनिटी. मोस्ट IMP रेस्ट टू इंफिनिटी. देखो मैंने लिखा है मोस्ट IMP रेस्ट टू इंफिनिटी. बहुत ही ज्यादा अच्छा सम है. तो आप बोलोगे सर इसके तो ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो 2 सम अभी मैंने करवाए हैं, वो 2 बार आपको दिया है. ये सम 3 बार लिख के मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है. बहुत ही बढ़िया सम मैंने लिखा, मोस्ट IMP रेस्ट टू इंफिनिटी, 4 मार्क्स. ओके, बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा सम है. देखो इसमें क्या करने वाले हैं, अभी जो लास्ट सम किया वही मेथड इसमें अप्लाई करेंगे. तो यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं. नाउ x square plus 1 in second bracket x square plus 2 in denominator x square plus 3 x square plus 4. Now put here x square equal to t. Then what we get? See here. Now I put x square equal to t. Then here we get t plus 1 into t plus 2 in denominator, t plus 3 into t plus 4. Now अब यहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं. t plus 1 into t plus 2 in denominator, t plus 3 into t plus 4. तो न्यूमेरेटर में जो फैक्टर है उस दोनों ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हमको मिलेगा न्यूमेरेटर में t into t, that is t square. t into 2 2t, 1 into t, that is t. मीन्स यहां पे आपको मिल गया 3t और कांस्टेंट टर्म 2 1 जा 2. नाउ इन डिनोमिनेटर t into t, that is t square. 4t plus 3t, 7t 4 3 जा 12. ओ यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है, न्यूमेरेटर में डिग्री 2 है, तो ये हमारा होगा इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन. ये हमारा क्या होगा? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन. और साथ में यहाँ पे मैंने dx को dt में कन्वर्ट नहीं किया है, तो अगला सम क्या है, उसी मेथड से काम करेंगे. जब इंटीग्रेशन करेंगे तब x की टर्म ही आनी चाहिए, क्योंकि dx को dt में मैंने कन्वर्ट नहीं किया है. ओके, तो बीच में t की जगह पे मैं x स्क्वायर रखने वाला हूं. पहले कैसे काम करेंगे, यहाँ पे ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, तो डिनोमिनेटर में जो है वो मैं न्यूमेरेटर में लिखने वाला हूं. तो यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, और डिनोमिनेटर में जो t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 है वो तो वैसा का वैसा ही. अब न्यूमेरेटर में जो पॉलिनोमियल है
उसमें चेंज कोई भी नहीं आना चाहिए, तो टी स्क्वायर वो तो है ही है, यहाँ पे जो है 70, लेकिन रियल में हमारे पास क्या है 3t, तो 70 तो नहीं चलेगा, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो कुछ 4t, 7t minus 4t we get 3t एंड कांस्टेंट टर्म एक्चुअली हमारे पास है 2, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है 12, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा 10। अब देखो इसको टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, नाउ माइनस कॉमन फ्रॉम दिस 4t प्लस 12 एंड इन डिनोमिनेटर टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। नाउ अब इसको स्प्लिट कर देता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉमन 4t प्लस 12 इन डिनोमिनेटर टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। अब डिनोमिनेटर में जो है टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, उसको मैं फैक्टर बना देता हूं, उसका फैक्टर है t प्लस 3 और t प्लस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस न्यूमरेटर में 4t प्लस 12, डिनोमिनेटर में हो जाएगा t प्लस 3 और t प्लस 4। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो इसको कैसे लिखेंगे, a अपन b अपन वाली मेथड, ओके, a अपन b अपन वाली मेथड। देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो अब यहां से स्टार्ट करता हूं। नाउ इसको मैं रिजल्ट ए बोल देता हूं, इसको मैं क्या बोलता हूं, रिजल्ट ए। नाउ आई राइट 4t प्लस 12 अपन t प्लस 3 इंटू t प्लस 4 इज इक्वल a अपन t प्लस 3 प्लस b अपन t प्लस 4। Now I take LCM. Now I take LCM, and here LCM is t plus 3 and t plus 4. Then I write 4t plus 12 is equal to a into t plus 4 plus b into t plus 3. Say this is result number 1. Now I find possible value of t. Then what will we do? Denominator equal to 0 or LCM equal to 0. T plus 3 into t plus 4 is equal to 0. Then we get from first bracket t equal to minus 3 and from second bracket we get t equal to minus 4. Then here we get two possible value of t, that is minus 3 and minus 4. Now I put t equal to minus 3 here and then I put t equal to, sorry यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा, यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी है, यहाँ पे हो जाएगा 10 सब जगह पे, यहाँ पे हो जाएगा 10, सॉरी बच्चों, यहाँ पे जल्दी जल्दी में मैंने थोड़ा 10 लिख लिया है, 12 लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ओके, तो अब t इक्वल टू -3 एंड t इक्वल टू -4 में रखने वाला हूँ रिजल्ट 1, t इक्वल टू -3 देन रिजल्ट 1। पुट हियर t इक्वल टू -3, 4 3 -12 प्लस 10, -12 प्लस 10 we get -2 and put here -3, then second term is 0. This side a into, put here t equal to -3 plus 4, that is 1. Then we get value of a is equal to -2. Now I put t equal to -4 in result 1, t equal to -4, then 1 implies, put here -4, 4 4s are -16. -16 plus 10 we get -6 and this side put here t equal to -4, then -4 plus 4 0, our first term is 0. Now put in second term t equal to -4 plus 3, then we get -1 from both side, minus cancel, then we get value of b is 6. Okay, then I put 4t plus 10 upon t plus 3 t plus 4 is equal to a, जो कि हमको मिला है -2, ओके, इन डिनोमिनेटर t plus 3, b हमको मिला है 6 अपन t plus। तो हमने प्रॉपर रेशनल फंक्शन पे वो मेथड का यूज करके ऐसा कुछ कर दिया है। अब रिजल्ट ए के ऊपर जाते हैं, तो रिजल्ट ए हमारा क्या है देखो यहाँ पे, तो therefore a implies
न्यूमेरेटर में हमको मिला है t+1, t+2, डिनोमिनेटर में हमको मिला है t+3 और t+4 इज इक्वल टू 1 माइनस, ये था हमारे पास तो मैं लिख लेता हूं 4t+10 अपन t+3 इंटू t+4, लेकिन इसकी जगह पे ऐसा कुछ हमने कर दिया है तो 1 माइनस ब्रैकेट -2 अपन t+3 प्लस 6 अपन t+4. Now open the bracket, then we get t+1 into t+2 in denominator, t+3 into t+4 is equal to 1 minus minus plus 2 divided by t+3 plus minus यहाँ पे -6 अपन t+4. तो इसकी जगह पे बहुत ही इजी फॉर्म हमको मिल रहा है. अब यहां से क्या करने वाले हैं, तो यहां पे मैं रखने वाला हूं t की जगह पे x². तो put now t equal to x². Then put here t equal to x², then we get x² plus 1 into second bracket x² plus in denominator x² plus 3 into x² plus 4 is equal to 1 plus 2 upon 1 plus 2 upon x² plus 3 minus 6 upon x² plus 4. तो जो हमारे पास फंक्शन था उसको बहुत ही इजी फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया है. अब सिर्फ इसका इंटीग्रेशन, मतलब इसका इंटीग्रेशन तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा. देखो अब क्या, तो i इक्वल टू, वैसे मैं फिर से लिख लेता हूं, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन इन न्यूमेरेटर x² plus 1 into x² plus 2 in denominator x² plus 3 into x² plus 4 dx. तो इसकी जगह पे हमने फाइंड कर लिया है 1 plus 2 अपन 1 plus 2 अपन x² plus 3, और जो लास्ट टर्म हमको मिली है वो है -6 अपन x² plus 4 dx. तो यहां पे क्या होगा, कुछ और मैं लिख देता हूं, सबको अलग अलग कर देता हूं. तो इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 2 आउटसाइड dx अपन x² जो 3 है उसकी जगह पे मैं लिखने जा रहा हूं √3² माइनस 6 आउटसाइड इंटीग्रेशन dx अपन x² प्लस 4 that is 2². Now simple integration of all the terms. Integration of 1 that is x plus 2 as it is. See here 1 upon x² plus a², and we know the formula of 1 upon x² plus a², which is 1 upon a. 1 upon a, that means 1 upon √3 tan inverse x upon √3 minus 6 as it is. Here 1 upon x² plus a², that is 1 upon a means 1 by 2 tan inverse x by a plus 2 3s are 6. Then our final answer is x plus 2 upon √3 tan inverse x upon √3 minus 3 into tan inverse x by 2 plus, which is our final answer. बहुत ही बढ़िया सम है. देखो बहुत ही लंबा सम भी है, बहुत बड़ा सम है. 3 बार इसको लिख के मुझे भेजना है, 1 या 2 बार पहले पढ़ ले, बाद में अपने आप लिखो. बहुत अच्छी तरह से ये सम प्रिपेयर हो जाएगा. आज टोटल आपको 7 सम लिखने, पहले 2 सम 2 बार और ये सम 3 बार. ओके, आज ये लेक्चर खत्म करते हैं.